Hello students, in this class we will discuss the numericals based on this chapter. तो सबसे पहली बात हमें ये करनी है कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. So the very first formula is the speed of light. Okay, and the speed of light c is calculated as nu lambda, मतलब frequency into wavelength. Correct. The second formula is the energy of photon, which we calculate as h nu and which you can also write as sc over lambda. अब यहाँ देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एक्चुअली दो यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उनके कन्वर्जेंस को भी याद रख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. Okay, and 1 joule is equals to 1 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो मल्टीप्लाई, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो डिवाइड. इज दिस क्लियर? द थर्ड फॉर्मूला इज द वर्क फंक्शन phi naught, and this we calculated as h into nu naught, which we can also write as sc over lambda naught. न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इज दिस क्लियर? ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे. ओके, फॉर्मूला नंबर 4 आई विल राइट ओवर हियर. फॉर्मूला नंबर 4 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. Right, kinetic energy of photoelectron we can write as h nu minus work function phi naught, which we can also write as h into nu minus nu naught, which we can also write as hc into 1 over lambda minus 1 over lambda naught. Okay, then formula number 5, kinetic energy जो है, kinetic energy, this we can also write as EVS, where E is the charge and VS is the stopping potential. Okay, and if you want to express kinetic energy in terms of velocity, then we have it is equals to half mv square. Is this clear? Okay, so you can equate this equation number 4, equation number 5 as well as equation number 6. Is this clear? Great. Okay, formula number 7. Formula number 7 is about the de Broglie wavelength lambda, and this de Broglie wavelength lambda is calculated as h over p, which we can also write as h over mv. ओके, इसको और भी हम अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय k. Correct, where k is the kinetic energy, and this kinetic energy you can again write as twice of m q into potential difference, where q is the charge and v is the potential difference. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, so for an electron this ratio we can also write as 12.28 divide under root of stopping potential, and the answer will be in the units of Armstrong. ओके, याद रखना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन. कोई और पार्टिकल है तो ये न्यूमरेटर जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि अल्फा के लिए चार्ज अलग है, अल्फा का मास अलग है. ओके, प्रोटॉन के लिए भी अलग होंगे. सो रिमेंबर दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम. क्या कहा है उन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम में कि हमारे पास दो अलग एनर्जी वाले फोटॉन्स हैं. ओके, कितनी है एनर्जी उनकी? we have 1.5 electron volt and 2.5 electron volt. They are incident on a metal surface, okay, whose work function is 0.5. ओके, तो सॉल्यूशन की ओर जाते हैं. लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर दिस. वर्क फंक्शन दिया है फाई नॉट, कितना है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, फर्स्ट फोटोन की जो एनर्जी है, फर्स्ट फोटोन की एनर्जी उसे मैं लिखता हूं h nu 1. ओके, कितनी दी गई है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सेकेंड फोटोन की एनर्जी h nu 2 इज गिवन एज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, हमसे पूछा क्या है? द रेशियो किसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या है? h nu 1 माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट डिवाइड h nu 2 माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट. Okay, substitute करो. So here you will have 1.5 minus 0.5 divide 2.5 minus 0.5. What is the answer in the numerator? 1. What is the answer in the denominator? 2. So what is the ratio of their kinetic energy? 1 by 2.
अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे हमने 501 एंड 502 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वी आर हैविंग अ सेम मेटल प्लेट। हमने मेटल प्लेट को नहीं बदला है, हमने फोटॉन्स को बदला हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो अगर मेटल प्लेट एक ही है तो वरु का वर्क फंक्शन विल रिमेन द सेम। दिस इज क्लियर? ग्रेट। Look at the second problem. Light of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो फटाफट से डेटा को लिखते जाने का। लाइट की वेवलेंथ कितनी दी गई है? 4000 एंगस्ट्रॉम। उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। यहाँ पे 3 अंडे मतलब 10⁻+3। ओके, +3 एंड -10 हमें कितना देगा? 10 टू द पावर -7 मीटर। क्लियर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वर्क फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्क फंक्शन ढूंढना है। वर्क फंक्शन मतलब क्या ढूंढना है? फाई नॉट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई विल फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू। ओके, एच न्यू जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? एच सी ओवर लैम्बडा। इज दिस क्लियर? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? इट इज 6.626 ओके इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। ओके, इसको हम करेंगे डिवाइड किससे? वेवलेंथ से। वेवलेंथ कितनी है बच्चों? 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो दिस इज 19.878 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -26 को करेंगे डिवाइड किससे? 4 इंटू 10 टू द पावर -7 से। बात आ रही है समझ में? पक्का? ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस एंड चेक। सो अगर आप डिवाइड करते हैं 19.878 को किससे डिवाइड करना है हमें? 4 से। सो स्टूडेंट व्हाट द आंसर विल बी? ओके, द आंसर विल बी 4.9695 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। तो ये जो हमें फोटोन की एनर्जी मिली है वो कौन सी यूनिट में मिली है? जूल में मिल गई है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन से यूनिट में है? इट इज इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो व्हाट आई विल डू? आई विल कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एच न्यू जो है ओके उसकी वैल्यू आई है 4.9695 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इसको कर देते हैं डिवाइड कितने से? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ओके, तो इसको हमने कर दिया डिवाइड कितने से? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 10⁻⁻19 तो उड़ गया। ओके, तो बचेगा कितना? आंसर होगा 3.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और फोटोन की एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब हमने रिलेशन क्या लर्न किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है एच न्यू माइनस फाई नॉट। यू आर क्लियर? ओके, सो फाई नॉट का इक्वेशन कैसे डिजाइन किया जाएगा? एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब एच न्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? इट इज 3.106, उसमें से माइनस करो 2, तो व्हाट द आंसर विल बी? आंसर विल बी 1.106 विद द यूनिट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना आएगा? 1.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप द कैलकुलेशन इज क्लियर फॉर यू ऑल। पक्का? दैट्स ग्रेट। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, कितनी दी गई है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में डिसाइड करो कि कन्वर्ट करना है जूल में या नहीं। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन फाई नॉट। ओके, कितना दिया गया है? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, हमें फाइंड क्या करने कहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को यूज करके हम क्या ढूंढ सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कैसे ढूंढते हैं? वेरी सिंपल, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, तो अब हमें करना क्या है? तो हमें 7 में से माइनस करना है 3.75। ओके, तो 7 में से अगर आप 7 में से माइनस करो 3.75। ओके, कैन यू क्विकली टेल मी द आंसर? द आंसर विल बी 3.25 विद द यूनिट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें आंसर मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना है? 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? ओके, तो वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो सो 3.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? जूल में। ओके, डोंट सिंप्लीफाई फर्दर, इसको ऐसे ही रखें। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे और एक फॉर्मूला पता है
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, ईवीएस। सही बात है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कितनी है, सो 3.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड, सॉरी, इज इक्वल्स टू, मिनट, ओके, इज इक्वल्स टू ई इंटू वी एस। बच्चों बताना जरा, ये जो ब्रैकेट में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, क्या ये वैल्यू और ई की वैल्यू सेम होती है? ओके, तो दोनों को उड़ा दो, तो दोनों को उड़ा दिया जाए तो Vs का आंसर आ गया कितना, इट इज 3.25 with the unit as volt. Okay, I hope the calculation is clear. So this is how we can find the stopping potential of metal. Okay, I hope you people are comfortable with the numerical solving. Okay, great. Move on to the next. In the next problem, it is said that the photoelectric work function of a metal is 3.3 electron volt. Okay, तो start करते हैं इसका solution. राइट, ओके, वर्क फंक्शन दिया है, मतलब क्या दिया है, फाई नॉट कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताना हमें फाइंड क्या करनी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको नॉर्मलाइज करो, मतलब जूल में कन्वर्ट करो, कैसे, सो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो अगर हम 3.3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 1.6 से, सो आंसर आएगा 5.28। सो दिस इज 5.28 इंटू हाउ मच, 10⁻⁻19। ये कौन से यूनिट में है, जूल में है। अब हमें ये पता है कि फाई नॉट होता क्या है, तो फाई नॉट होता है h इंटू न्यू नॉट, और हमसे पूछा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई नॉट ओवर h। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ how you will simplify this, we can write threshold frequency nu naught, phi naught की वैल्यू है 5.28 into 10 to the power minus 19। इसको हम करेंगे डिवाइड कितने से बच्चों, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, तो 6.626 into 10 to the power minus 34। ओके, तो 5.28 को पहले हम कर देते हैं डिवाइड 6.626 से, एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.7967। ओके, -34 अगर ऊपर चला जाए तो +34। ओके, +34 है, इज इज क्लियर? ओके, +34 एंड -19। ओके, तो बचाना मुझे बच्चों कि 34 में से अगर हम 19 को माइनस करें तो व्हाट द आंसर विल बी, 10 टू द पावर ऑफ 15। so here you will have 10 to the power of 15, so we can write the threshold frequency as 7.967 into how much, 10 to the power of 14। मैंने डेसिमल वन स्टेप फॉरवर्ड शिफ्ट किया, फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या होगा इसका, हर्ट्ज। so this is the final answer. okay, great. look at the next problem. a light of maximum wavelength 4000 angstrom। okay, लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ दी गई है। ओके, अब ध्यान रहे मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वो कौन से वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो लैम्डा नॉट इज गिवन एज 4000 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस। ओके, ये बाद में डिसाइड करते हैं कि ये लैम्डा नॉट है या नहीं है। ओके, सो वेवलेंथ इज गिवन एज 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, मतलब कितना हुआ, -7 मीटर। When incident on a photosensitive surface, it emits photoelectron. Okay, determine the minimum energy in electron volt which enables the photoelectrons to escape from the metal surface. Okay, determine the minimum energy in electron volt. अब बताना बच्चों कि minimum energy मतलब हमसे क्या पूछा गया है, phi naught. ओके, वर्क फंक्शन मतलब ये कौन सी वेवलेंथ दी गई है, लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन इज क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, वी नो कि फाई नॉट जो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, hc ओवर लैम्डा नॉट से। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, यहां से हमें जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी इन द यूनिट्स ऑफ जूल, और हमसे पूछा गया है एनर्जी इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करो, इसको डिवाइड बाय चार्ज कर दो। सो दिस इज hc डिवाइड बाय e टाइम्स लैम्डा नॉट। नाउ द आंसर विल कम इन द यूनिट्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि आपके कैलकुलेशन का जो टाइम है ना वो सेव हो सके। इज इज क्लियर? ओके, सो फटाफट से वैल्यूज को फिल करते हैं। hc का प्रोडक्ट याद रखना, इट इज 19.878 इंटू 10 टू द पावर -26, क्योंकि दोनों भी कांस्टेंट है। उसको अब हमने कर दिया डिवाइड, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। इज दिस क्लियर? ओके, अब जरा फटाफट से इसको वर्कआउट करो एंड चेक व्हाट द आंसर यू आर गेटिंग। यस, आई विल गिव यू 2 मिनट्स का टाइम।
19.878 ओके को करेंगे डिवाइड पहले 1.6 से और फिर करते हैं डिवाइड इसको 4 से ओके सो आंसर विल कम आउट अराउंड 3.1059 ओके -19 एंड -7 कितना देगा -26 जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा सो फाई नॉट का जो आंसर है वो होगा 3.1059 विद द यूनिट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट so this is how we calculated the work function in the units of electron volt this is clear for everyone pakka sure okay I hope you are enjoying the problem solving session okay चलो फटाफट से नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं photoelectric work function for a metal surface is 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके अब उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये क्या है बच्चों ये है वर्क फंक्शन फाई नॉट कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ओके लाइट की वेवलेंथ कितनी दी गई है 3500 एंगस्ट्रॉम यूनिट ओके सो हमारे पास जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा इज गिवन 3500 एंगस्ट्रॉम तो उसको मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻10 से तो ये कौन से यूनिट में आ गया मीटर में आ गया ओके और यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 तो ये कौन से यूनिट में हो गया जूल में ये डेटा हमें दिया गया है हमसे पूछा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ और वेलोसिटी बताओ इज दिस क्लियर ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वी विल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ओके काइनेटिक एनर्जी कैसे ढूंढते हैं काइनेटिक एनर्जी वेरी सिंपल वी हैव hc ओवर लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट फॉर्मूला क्या है हमारे पास hc ओवर लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट ओके सो hc की वैल्यू कितनी है इट इज 19.878 इनटू हाउ मच 10 टू द पावर -26 इसको हमने कर दिया डिवाइड वेवलेंथ से जो हम लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻⁻8 ये दो अंडे है ना मतलब 10⁻+2 ओके इसमें से हमें करना है वर्क फंक्शन को माइनस ओके तो 16 3 जा 48 तो 4.8 इंटू कितना होगा 10⁻⁻19 अब आप इसको लॉग से सॉल्व करो या नॉर्मल डिवीजन से सॉल्व करो चॉइस इज योर्स इज दिस क्लियर ओके तो इसको सॉल्व करेंगे यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर मस्ट बी 0.88 into 10 to the power of -19 and the unit will be joule. This is clear? Pakka? Great. Secondly, once you get kinetic energy, you can find stopping potential. तो कैसे? Very simple. Kinetic energy का फॉर्म हमने क्या लर्न किया हुआ है EVS, राइट ना? ओके तो VS की वैल्यू क्या होगी? VS will be काइनेटिक एनर्जी जो हमने स्टेप 1 में ढूंढ निकाली है उसको हम करेंगे डिवाइड किससे चार्ज से राइट ओके सो इफ यू डिवाइड देम you can check by using the log your answer must be around 0.55 volt okay and what is asked in the third point we have to find the velocity okay अब जरा बच्चों बताना how you will find the velocity of photoelectron any idea yes okay so see यही पे बता देता हूँ मैं आपको can I equate this with half mv square तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला तो डिजाइन हो गया ना वेलोसिटी का फॉर्म क्या बनेगा वेलोसिटी का फॉर्म बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ईवीएस डिवाइड बाय एम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास आपको पता है वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो स्टेप 2 में मिला है तो सब्स्टिट्यूट take the square root and see what the answer you are getting your answer must be around 0.4398 into how much 10 to the power of 6 and since we are calculating the velocity unit must be meter per second okay I hope you all are clear थोड़ा लेंदी है but I hope you can solve this okay now look at the next one what will be the speed of electron having a wavelength 10⁻⁻10 meter अब ये जो प्रॉब्लम है this problem is based on your de Broglie wavelength का concept okay what will be the speed of an electron okay having a wavelength तो बताओ बच्चों इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं any idea which formula we are supposed to use so lambda is equals to given as 10 to the power of -10 meter करेक्ट अब लैम्बडा का फॉर्म तो हमने लर्न किया है इट इज h ओवर mv तो आ गई बात वेलोसिटी ही तो पूछा है स्पीड तो पूछा है सो इट इज h डिवाइड बाय m लैम्बडा ओके अब फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 को करेंगे डिवाइड ओके मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 9.1
into 10 to the power minus 31 and the wavelength is given as 10 raised to minus 10. So we can simplify this further and we can write कि lambda is equals to, अब फटाफट से ऑपरेट करते हैं, 6.626 को करेंगे डिवाइड कितने से, 9.1 से, सो आंसर विल बी अराउंड 0.7281 करेक्ट ना। -31 एंड -10 कितना देगा, -41, -41 ऊपर आ जाए तो +41 मतलब कितना हुआ, +7, so it is 10 to the power of +7. what are we calculating, not the wavelength, we are calculating the velocity, करेक्ट ना। तो वेलोसिटी अगर हम ढूंढ रहे हैं, सो आई कैन राइट v इज इक्वल्स टू 7.281, डेसिमल एक कदम आगे जाए तो ये बनेगा +6 एंड यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इज द कैलकुलेशन क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, ग्रेट, यू हैव टू बी वेरी शार्प इन कैलकुलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल if both are accelerated by a potential difference of 100 volt. ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना होगा, राइट। वी आर स्टडीड के वेवलेंथ जो है इट इज गिवन बाय अंडर रूट एच, ओके, डिवाइड सॉरी एच ओवर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम इंटू क्यू बी। फॉर्मूला लिस्ट में मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके दोनों को हमने सेम पीडी लगाया है, देखो तो वी तो कांस्टेंट हुआ, दोनों के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो कैन आई से दैट कि वेवलेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, m इंटू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू, राइट। सो यहां से हम लेते हैं रेशियो, किसका रेशियो लेना है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। अब बच्चों बताना मास के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, तो सीक्वेंस बदल जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ अल्फा ओवर द मास ऑफ प्रोटॉन। सेम वे चार्ज के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, तो लिखना है चार्ज ऑन अल्फा ओवर द चार्ज ऑन प्रोटॉन। इज दिस क्लियर? ओके नाउ यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन देयर मासेस एंड द चार्जेस। तो याद रहे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन it is 4 times, sorry, the mass of alpha is 4 times the mass of proton. इसको हमने लिखा 4 mp over mp into सेम वे जो चार्ज ऑन अल्फा होता है ना वो डबल होगा किसके, चार्ज ऑन प्रोटॉन, so this is 2 times charge of proton divide the charge on proton. तो mp mp cancel, qp and qp cancel, तो बचा क्या बच्चों, so we are left with under root of 4 into 2 is to 1, लेकिन अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना होता है, 2, ओके, सो कैन वी राइट दिस एज 2 into root 2 is to 1, so this gives me the ratio for what, wavelength of proton divide wavelength of alpha. is this result clear? ओके तो एक पॉइंट यहाँ से आपने आज न्यू लर्न किया है कि मास ऑफ अल्फा जो होता है इट इज 4 times the mass of proton, point to be noted. Same way the charge on alpha will be double the charge on proton. Okay, so this knowledge will help you to solve the problems for your board exam as well as your entrance examination. This is clear? Pakka? Thank you all.